دمونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کا منی آئی کیو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی تہوں میں اترنے والے ہیں جو پاکستان میں ہر شخص کی جیب پر اثر ڈالتا ہے، چاہے وہ اس بات کو جانے یا انجانے میں نظر انداز کر دے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ٹیکس نظام کی۔ بالکل، اور یہ صرف تنخواہ دار طبقے یا بڑے کاروباریوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس دکاندار کی کہانی ہے جس سے آپ سودا لیتے ہیں، اس فری لانسر کی جو رات بھر جاگ کر کام کرتا ہے، اور خود آپ کی بھی جب آپ صرف ایک بوتل پانی خریدتے ہیں۔ آج ہم ایک جاسوس کی طرح پاکستان کے ٹیکس نظام کے اس جال کا پیچھا کریں گے۔ ہمارا مشن ایک سوال کا جواب تلاش کرنا ہے: ایک ایماندار تنخواہ دار شخص کیوں محسوس کرتا ہے کہ سارا بوجھ اسی پر ہے، جبکہ معیشت کا ایک بڑا حصہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے؟ ہم ان پیسوں کا پیچھا کریں گے، ایک عام ملازم کی پے سلپس کے لے کر ایک دکاندار کے گلے تک، اور دیکھیں گے کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے نظام کی بنیاد کیا ہے۔ پاکستان کا ٹیکس نظام بنیادی طور پر کھڑا کس چیز پر ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہی پورے نظام کی کہانی بیان کرتا ہے۔ پاکستان کا ٹیکس نظام زیادہ تر بال واسطہ یعنی انڈائریکٹ ٹیکسوں پر چلتا ہے۔ ایک منٹ، ذرا اس کو آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ مطلب حکومت لوگوں کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کے بجائے چیزوں کی خرید و فروخت پر زیادہ ٹیکس لیتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اعداد و شمار دیکھیں تو تصویر اور واضح ہو جاتی ہے۔ حکومت کی جو کل ٹیکس آمدنی ہے نا، اس کا 60% سے بھی زیادہ حصہ 60%؟ جی 60% سے زیادہ وہ انہی بال واسطہ ٹیکسوں سے آتا ہے۔ اور دوسری طرف 24 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، لیکن ریٹرن فائل کرنے والے وہ بمشکل 30 سے 40 لاکھ لوگ ہیں۔ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی اقلیت ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملک کا خرچ چلانے کا زیادہ تر بوجھ عوام کی جیب سے براہ راست نہیں، بلکہ ان کی ہر خریداری کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے، اور ایک طرح سے طاقت بھی۔ طاقت کیسے؟ کمزوری اس لیے کہ بوجھ غیر منصفانہ طور پر تقسیم ہوتا ہے، اور طاقت اس لیے کہ حکومت کے لیے یہ ٹیکس وصول کرنا بہت آسان ہے۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ تو خرید ہی رہا ہوتا ہے نا۔ صحیح۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متوسط طبقہ، خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ جو دستاویزی معیشت کا حصہ ہے، وہ تو پھنس جاتا ہے، جبکہ امیر طبقے کا ایک بڑا حصہ وہ اپنی اصل آمدنی چھپا کر ٹیکس نیٹ سے باہر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان پھنسے ہوئے لوگوں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ براہ راست ٹیکسوں کی بات کرتے ہیں، جس میں سب سے اہم انکم ٹیکس ہے۔ آئیے ایک عام تنخواہ دار شخص کی مثال لیتے ہیں، اسے علی کہہ لیتے ہیں۔ علی کے لیے یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ علی کی مثال بالکل واضح ہے۔ فرض کریں علی ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے، اور اس کی ماہانہ تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہیں، یعنی سالانہ 18 لاکھ روپے۔ اب موجودہ ٹیکس سلیبس کے مطابق فرض کریں کہ وہ 12.5% کے سلیب لاتا ہے، تو اس حساب سے اس کا سالانہ ٹیکس تقریباً 2,25,000 روپے بنے گا۔ اور یہ ٹیکس اسے سال کے آخر میں خود جا کر جمع کروانا ہوتا ہے؟ نہیں، یہی تو اصل بات ہے۔ علی کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہیں پر پے ایز یو ارن یعنی PAYE کا نظام کام آتا ہے۔ اچھا۔ علی کی کمپنی اسے تنخواہ دینے سے پہلے ہی ہر مہینے تقریباً 18,750 روپے ٹیکس کاٹ کر حکومت کو جمع کروا دیتی ہے۔ علی کے اکاؤنٹ میں تنخواہ ٹیکس کٹنے کے بعد آتی ہے۔ تو علی چاہے یا نہ چاہے وہ ایک دیانتدار ٹیکس دہندہ ہے۔ اس کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سسٹم نے اسے پوری طرح سے جکڑ رکھا ہے۔ بالکل، علی جیسے لاکھوں لوگوں کے لیے ٹیکس سے بچنا ناممکن ہے۔ ان کا ٹیکس تنخواہ ملنے سے پہلے ہی کٹ جاتا ہے۔ وہ معیشت کے وہ سپاہی ہیں جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں، سسٹم سے باہر کام کرتے ہیں، جیسے ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی فری لانس اکانومی۔ جی، جو لوگ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر دنیا بھر سے کما رہے ہیں، حکومت ان تک کیسے پہنچتی ہے؟ ان کا تو کوئی HR ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑھتا ہوا شعبہ ہے۔ اس کے لیے سارا کی مثال دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فرض کریں سارا ایک فری لانسر ہے جو یوٹیوب اور فائیور جیسے پلیٹ فارم سے سالانہ 25 لاکھ روپے کماتی ہے۔ اب اس کا کوئی امپلائر نہیں ہے جو اس کا ٹیکس کاٹ سکے۔ تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ کیا وہ ٹیکس سے بچ سکتی ہے؟ بچنا تو نہیں چاہیے، اور نظام اسے بچنے نہیں دیتا۔ سارا کو خود ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ اسے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر یعنی NTN رجسٹر کروانا ہوگا۔
ओके। फिर एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल आईआरएस पर अपना सालाना रिटर्न फाइल करना होगा और अपना टैक्स जो उसकी आमदनी पर तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए बनेगा वो खुद ही अदा करना होगा। लेकिन अगर वो ये सब ना करे तो हुकूमत को कैसे पता चलेगा? यहीं पर हुकूमत गाजर और छड़ी वाली पॉलिसी अपनाती है। अगर सारा फाइलर नहीं बनती तो उसकी बैंकिंग बहुत महंगी हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? बैंक से कैश निकालने पर, पैसे ट्रांसफर करने पर, हर चीज पर उसे इजाफी टैक्स देना पड़ता है, जिसे नॉन फाइलर टैक्स कहते हैं। तो एक तरह से निजाम उसे मजबूर करता है कि वो खुद को रजिस्टर करवाए। अच्छा, तो तनख्वाहदार तबके को तो सीधा पकड़ लिया और फ्रीलांसर्स को बैंकिंग निजाम के जरिए घेर लिया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस दुकानदार का क्या, जो ज्यादातर नकद में काम करता है? उस्मान जो मोबाइल फोन की दुकान चलाता है, उसकी कहानी क्या है? यहीं पर निजाम का सबसे बड़ा चैलेंज और हमारी जासूसी का असल इम्तिहान शुरू होता है। उस्मान की मिसाल लें। फर्ज करें उसका सालाना मुनाफा 30 लाख रुपए है, लेकिन वो क्या करता है? चूंकि उसका ज्यादातर काम नकद में है, कोई पक्की रसीदें नहीं है, तो वो अपना मुनाफा सिर्फ 10 लाख रुपए जाहिर करता है। यानी सीधी सीधी अंडर रिपोर्टिंग। जी, अंडर रिपोर्टिंग। और इसी पर मामूली सा टैक्स अदा कर देता है। ये पाकिस्तान में टैक्स चोरी की सबसे आम शक्ल है। एक मिनट रुकिए। अगर हुकूमत को पता है कि ऐसा हो रहा है और ये कोई राज तो है नहीं, तो वो सिर्फ इनके रिटर्न्स फाइल करने का इंतजार क्यों करती है? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि पैसा उनके हाथ में आने से पहले ही पकड़ लिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अली की तनख्वाह के साथ होता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी का जवाब है एक और पोशीदा निजाम, जिसे विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स? जी, ये हुकूमत का एक तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। हुकूमत आपके साल के आखिर में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करती, बल्कि मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर पहले ही एडवांस में टैक्स काट लेती है। मसलन ये कहाँ-कहाँ लागू होता है? तकरीबन हर जगह। जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है तो टैक्स कटता है, मोबाइल फोन के बिल पर टैक्स कटता है, बैंक से मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स कटता है, यहाँ तक कि जब कोई इंपोर्टर बाहर से सामान मंगवाता है तो उसकी क्लियरेंस के वक्त ही एडवांस टैक्स काट लिया जाता है। मोबाइल बिल की मिसाल से समझाएं, क्योंकि ये तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। फर्ज करें किसी का माहाना मोबाइल बिल 2000 रुपए है। इस पर 10% के हिसाब से 200 रुपए विदहोल्डिंग टैक्स कट जाएगा। ठीक है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर वो शख्स नॉन फाइलर है, यानी अपना रिटर्न जमा नहीं करवाता, तो यही शरत दुगनी हो जाती है। ओह, यानी उसे 400 रुपए देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। ये भी लोगों को फाइलर बनने पर मजबूर करने का एक तरीका है। तो अगर हुकूमत उस्मान जैसे दुकानदारों से बराह रास्त इनकम टैक्स नहीं ले पाती, तो उसने एक दूसरा जाल बिछा रखा है, जहां वो कहीं ना कहीं पकड़े ही जाते हैं। लेकिन ये तो फिर भी बराह रास्त टैक्सों की दुनिया थी। अब इस मैदान में चलते हैं जहां हम सब, अमीर, गरीब, फाइलर, नॉन फाइलर, सब बराबर हैं और हर रोज टैक्स अदा करते हैं। जी, अब हम बिलवास्ता टैक्सों की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं, जहां अवाम असल में सबसे ज्यादा अदायगी करते हैं। इनमें सबसे बड़ा और सबसे मशहूर टैक्स है जनरल सेल्स टैक्स या जीएसटी, जिसकी मौजूदा शरह 18% है। 18%? ये कैसे काम करता है? कोई आम सी मिसाल दें, जैसे रोजमर्रा की खरीदारी की। सबसे आम मिसाल ग्रोसरी की खरीदारी है। फर्ज करें आपने एक सुपर स्टोर से 1000 रुपए का सामान खरीदा। आपको लगता है कि आपने 1000 रुपए अदा किए हैं, लेकिन हकीकत में उस सामान की असल कीमत तकरीबन 847 रुपए थी और उस पर 153 रुपए सेल्स टैक्स लगा हुआ है। आप काउंटर पर 1000 रुपए अदा करते हैं, ये सोचे बगैर कि आपने 150 रुपए से ज्यादा टैक्स अदा किया है। और ये अमीर और गरीब सब पर एक ही शरह से लागू होता है? ये तो सरासर नाइंसाफी लगती है। बिल्कुल, और यही इस निज़ाम का सबसे बड़ा तजाद है। मुआशी इस्तिलाह में इसे रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। रिग्रेसिव? जी, क्योंकि एक अरबपति भी साबुन पर 18% टैक्स देता है और एक मजदूर भी। फीसद बराबर हैं, लेकिन दोनों की आमदनी के लिहाज से इसका बोझ बिल्कुल बराबर नहीं। सही। सेल्स टैक्स के अलावा और कौन से अहम बालवसाता टैक्स हैं जो हमारी जेबों पर हमलावर होते हैं? 2 और बड़े टैक्स हैं। एक है फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी FED। अच्छा। ये आमतौर पर उन अशिया पर लगती है जिन्हें हुकूमत लग्जरी समझती है या उनकी हौसला शिकनी करना चाहती है।
जैसे सिगरेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और यहाँ तक कि हमारे इंटरनेट और मोबाइल डेटा पैकेजेस पर भी। और दूसरा? दूसरा है कस्टम्स ड्यूटी, जो दरामदी यानी इंपोर्टेड अशिया पर लगती है। यही वो टैक्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाहर से मंगवाई गई चीज़ें, खास तौर पर गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स, इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं। इसकी कोई ठोस मिसाल दे सकते हैं, जैसे एक मोबाइल फोन? ज़रूर। फर्ज करें एक मोबाइल फ़ोन की दरामदी कीमत 50,000 रुपए है। जब वो पाकिस्तान पहुंचता है तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और दीगर टैक्स लगते हैं। ये सब मिलाकर तकरीबन 25,000 रुपए। जी, इस तरह मार्केट में पहुंचने तक उस फ़ोन की कीमत 75,000 रुपए हो जाती है। ये इजाफी 25,000 रुपए सीधा सारिफ की जेब से हुकूमत के खजाने में जाता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अब जरा मुख्तसरन कुछ और अहम शोबों पर भी बात कर लेते हैं। सर्विसेज और प्रॉपर्टी पर टैक्स का निज़ाम कैसा है? सर्विसेज पर टैक्स का मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये सूबाई हुकूमतों के दायरा कार में आता है। अच्छा। हर सूबे का अपना रेवेन्यू बोर्ड है, जैसे सिंध में एसआरबी और पंजाब में पीआरए। मिसाल के तौर पर कराची में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसकी माहाना आमदनी 5 लाख रुपए है। उसे अपनी आमदनी पर 13% यानी 65,000 रुपए सिंध रेवेन्यू बोर्ड को अदा करना होगा। और अगर यही कंपनी लाहौर में हो तो उसे पंजाब के कानून पर अमल करना होगा? बिल्कुल, तो उसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स देना होगा। इससे इन कंपनियों का सरदर्द बढ़ जाता है जो कई सूबों में काम करती हैं। और प्रॉपर्टी का शोभा, जिसे अक्सर टैक्स चोरी की जन्नत कहा जाता है, वहाँ फाइलर और नॉन फाइलर का क्या चक्कर है? प्रॉपर्टी के शोबे में हुकूमत ने फाइलर और नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरहों में बहुत बड़ा फर्क रखा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता है तो बतौर फाइलर उसे तकरीबन 4 लाख रुपए टैक्स अदा करना होगा। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर है तो उसे 7 लाख रुपए से भी ज्यादा अदा करने पड़ेंगे। यानी सीधा 3 लाख रुपए से ज्यादा का फर्क। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी तरगीब है। अब आखिरी सवाल इस हिस्से का, बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर, वो कैसे टैक्स अदा करती हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर का निज़ाम बिल्कुल अलग और ज्यादा मुनज़्ज़म है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मिसाल लें। फर्ज करें उसका सालाना मुनाफा 10 करोड़ रुपए है। उसे इस मुनाफे पर 29% कॉर्पोरेट टैक्स अदा करना होगा, जो 2 करोड़ 90 लाख रुपए बनता है। क्या सिर्फ यही टैक्स है या उन पर भी मजीद बोझ है? नहीं, उसके अलावा भी कई टैक्स हैं। बाज़-औक़ात हुकूमत बड़े मुनाफों पर सुपर टैक्स भी लगा देती है। फिर एक टर्नओवर टैक्स होता है और सबसे हैरानकुन बात कम टैक्स है। नुकसान में भी टैक्स? ये तो अजीब बात है। ऐसा क्यों है? हुकूमत ये इसलिए करती है ताकि कंपनियां जानबूझकर हर साल कागजों में नुकसान दिखाकर टैक्स से मुकम्मल तौर पर बच ना सकें। ये एक तरह से हुकूमत का सेफ्टी नेट है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सारी बहस हमें कहाँ ले जाती है? हमने जो जासूसी शुरू की थी, क्या हम उसके नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये निज़ाम इतना गैर मुनसिफाना क्यों लगता है? बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी वजह टैक्स के बोझ की गैर मुसावी तकसीम है। वो कैसे? देखें, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी एक एक रुपए की आमदनी दस्तावेजी होती है। इसके मुकाबले में ताजिर बिरादरी अपनी आमदनी छुपा लेती है। ज़राअत का शोबा, उस पर इनकम टैक्स तकरीबन ना होने के बराबर है, और रियल एस्टेट में भी असल कीमत कम दिखाकर टैक्स बचाया जाता है। तो यही अदम तवाज़ुन अली जैसे आम आदमी में मायूसी और गुस्सा पैदा करता है कि सिर्फ वही क्यों टैक्स अदा करे। बिल्कुल यही बात है। तो क्या मुस्तकबिल में कुछ तब्दीली की उम्मीद है? क्या ये निज़ाम हमेशा ऐसा ही रहेगा या ये किसी सिमत जा रहा है? उम्मीद हमेशा होती है, और निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। मुस्तकबिल डिजिटलाइजेशन का है। अच्छा। ये एक तरह से टैक्स चोरों और हुकूमत के दरमियान बिल्ली चूहे का खेल है, और अब हुकूमत टेक्नोलॉजी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। कौन से ठोस इक़दामात उठाए जा रहे हैं? कई अहम इक़दामात हैं, जैसे बड़े रिटेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी POS सिस्टम को FBR के साथ मुंसलिक करना लाजमी करार दिया गया है। डिजिटल इनवॉइसेस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सिगरेट, चीनी जैसी अशिया के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज किया गया है। और सबसे बड़ी तब्दीली ये कि बैंकों को पाबंद किया जा रहा है कि वो सारिफीन का डेटा FBR के साथ शेयर करें। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में आमदनी छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। मुस्तकबिल में ऑडिट इंसान नहीं बल्कि मसनूई ज़हानत यानी AI के एल्गोरिदम्स करेंगे। जब सिस्टम के पास आपके बैंक अकाउंट्स,
آپ کی جائیداد، آپ کے سفر، سب کا ڈیٹا موجود ہوگا، تو غیر دستاویزی آمدنی کو چھپانا ممکن نہیں ہو جائے گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا ٹیکس نظام بالواسطہ ٹیکسوں کی بیساکھی پر کھڑا ہے، جس کا سارا بوجھ عام آدمی اٹھاتا ہے۔ یہ نظام ایماندار ٹیکس دہندگان، خاص طور پر علی جیسے تنخواہ دار طبقے پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، جبکہ عثمان جیسے لوگوں کو غیر رسمی معیشت میں پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جی، لیکن اس میں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈاکیومنٹیشن کا عمل بہتر ہو جائے اور معیشت کے تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے تو حکومت کم ٹیکس کی شرحوں کے ساتھ بھی زیادہ ریونیو اکٹھا کر سکتی ہے۔ اور اس سے علی پر بوجھ کم ہوگا اور عثمان کو بھی نظام میں آنا پڑے گا۔ بالکل، اور ایک مضبوط معیشت کی بنیاد رکھی جا سکے گی۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ۔ ذرا سوچیں، اگر ڈیجیٹل ذرائع سے ہر ایک روپے کی لین دین دستاویزی ہو جائے تو یہ نہ صرف معیشت کو شفاف بنائے گا بلکہ یہ شہریوں اور ریاست کے درمیان اعتماد کے رشتے کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ جب ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہو اور ہر کسی کو نظر آ رہا ہو کہ اس کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے تو ریاست کی ذمہ داریوں اور شہریوں کے حقوق کی نوعیت کیا ہوگی؟ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ Like and subscribe.